है गाइज। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या देख लेते हम लोगों ने, वी वर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन देखा था कि हाइब्रिडेशन में बेसिकली होता क्या है, व्हाई डज द हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस। सो व्हाट इज बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is a hypothetical phenomena which is explained to bring the stability, to bring the uniformity in a molecule, to explain the shape of the molecule, geometry of the molecule, okay. So explain the existing facts about the molecule, जो भी molecule exist करता है उसके about जो facts है existing practical facts, उसको explain करने के लिए we bring the concept of hybridization. So it is basically a hypothetical concept. Then we have seen the characteristics of hybridization. What are the characteristics that we have seen? First we have seen the definition. What is the definition of hybridization? It is a intermixing of atomic orbitals of a particular atom having lesser energy difference between them, to form a set of new degenerate orbital, that is called as hybrid orbital, and the phenomenon is called as hybridization. Secondly, what we have seen, the shape of the hybrid orbital. What is the shape of the hybrid orbital? They are having a dumbbell shape where one lobe is larger than another lobe. Then size depends on percentage character. As the percentage character increases, size decreases. Then electronegativity, as the electronegativity percentage character increases, electronegativity increases. Percentage character increases, energy of the orbital decreases. Then we have seen that ki hybrid orbital, they are more directional than pure orbitals because they have a one larger lobe. So electron density is basically concentrated on that lobe, है ना. So they are more directional than pure orbitals. That's why the overlapping which takes place due to hybrid orbital is stronger than which is takes place due to the pure orbital, keeping the size constant. So when you talk about the strength of hybrid orbital also, first thing we will see the size, and after that we are going for percentage character, right. So if you are going for strength of overlap due to hybrid orbital, okay, so I'll write over here strength of overlapping. First factor, size. First factor is always a size, strength, and second factor, percentage character. Percentage character proportional to strength. Okay, it implies that keeping size constant, SP-SP overlap is more than SP-SP2 overlap is more than SP2-SP2 overlap is more than SP2-SP3 overlap is more than SP3-SP3 overlap. ठीक है, चलेगा, सही बात है कि नहीं. 50% एज कैरेक्टर, 50% एज कैरेक्टर, 50% एज कैरेक्टर, 33% एज कैरेक्टर, 33, 25, 25, and this overlapping is more than pure orbitals. Pure orbitals से overlapping ज़्यादा strong हो जाएगी, ठीक है. So this is what your strength of overlapping. So all these things we have seen in the last lecture. Then after that we have also have seen the formation of CH4 molecule. CH4 molecule का formation देख लिया था हम लोगों ने कि CH4 actually बनता कैसे है. So for CH4 molecule to exist, the hybridization of carbon atom in the CH4 molecule, जब हम लोग CH4 की बात करते हैं तो CH4 में what is this overlap, जब हम लोग बोलते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल होती है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज द EP 1 2 3 4, EP equal to 2, so hybridization will be sp3. So this overlap is formed due to sp3s, and is also sp3s, ठीक है. This is what your hybridization. So we will see it कि hybridization is directly related to the EPs. जितने तुम्हारे EPs है that will be your hybridization. कई कई जगह पे चेंज होगा जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. रेजोनेंस जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली वो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसका एक देखेंगे एप्लीकेशन या रेजोनेंस की एक शॉर्ट ब्रीफिंग देखेंगे हम लोग, शॉर्ट ब्रीफिंग, क्योंकि उसका एप्लीकेशन हम लोगों को यहाँ पे कई जगह पे देखना है. तो अगर मुझे बात करनी है, सो इन जनरल व्हाट आई राइट, इन जनरल EP equals to 2, 3,
4 5 6 7। अगर EP2 है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, EP3 है sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। दिस आर व्हाट माय हाइब्रिडेशन विथ रिस्पेक्ट टू EP। अब इसमें और भी पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन हमको दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमको इनकी ही जरूरत पड़ने वाली है। इनके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, अगर मैं बताना चाहूँ तुमको तो क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती है। देखो यहाँ पे होते बहुत सारे हैं, लेकिन जो और हमको सिलेबस में होते हैं, बट अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो तुम लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यहाँ पे आता है SD भी आता है, यहाँ पे आता है sp3 में व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, dsp2 एक पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, d3s भी पॉसिबिलिटी आती है। sp3d में इज नथिंग बट dsp3 आएगा, यहाँ पे आएगा d2sp3, ठीक है। सो दिस आर द अगेन अनदर पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। अदरवाइज हमारी रिक्वायरमेंट इतनी होगी, EP2 आया तो SP, EP3 आया SP2, EP4 आया SP3 5, SP3d6, SP3d2 एंड 7 SP3d3, ठीक है। सो विल सी इट कि हाउ डज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू दिस ओवरलैप। सो जैसे कि मैंने बताया था, whenever the polyatomic species are there, so whenever the polyatomic species are there, the central atom uses hybrid orbital for its bond formation। जो सेंट्रल एटम होता है वो जनरली क्या करता है, तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। प्योर ऑर्बिटल के थ्रू उसकी बॉन्डिंग होती है क्या, नहीं, ओके। सो और हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारे प्योर ऑर्बिटल्स है ना, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल। अब बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हो रहा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर आ गया, तो s कैरेक्टर आ गया मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे आ गई, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। फर्स्ट आई विल राइट द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर also atomic orbitals only। ये भी क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर एटम के लिए होते हैं। तो पहली बात करता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। सो दीज आर हैविंग शेप्स लाइक, these are having shapes such as spherical, dumbbell, these are having shapes in which they are having shape like dumbbell, where one lobe is larger than another. In hybrid atomic orbital, energy of atomic orbital differs. Like s orbital is lesser energy than p orbital. p में भले ही डिजेनरेसी है, बराबर है। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट, ठीक है। देन क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल डिजेनरेट हो गए बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, पी डी आर डायरेक्शनल, ठीक है। वेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन pure orbital. Pure orbitals like p है ना, d can form sigma bond
as well as pi bond. Hybrid orbital always form sigma bond. Always form sigma bond. Never form pi bond. बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते. कौन सा बॉन्ड नहीं बनाते? पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाते. अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा तो किसकी वजह से बन रहा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बन रहा होगा. अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा है किसी एटम का, किससे बन रहा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल, उस पर्टिकुलर एटम के. पाई बॉन्ड कभी बनता है क्या? नहीं. पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल. पाई बॉन्ड यहां पे लिख भी देता हूं मैं. पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल्स, PD. ठीक है. एक्सेप्ट वन, एक मॉलिक्यूल बच जाता है, दैट इज बेंजाइन. ये पढ़ेंगे हम लोग बेंजाइन. बेंजाइन में जो होता है, ठीक है, बेंजाइन में जो होता है वो होता है एक जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बनता है. ठीक है. एक्सेप्ट बेंजाइन, एक ही मॉलिक्यूल है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना देती है और वो बहुत अनस्टेबल भी होता है. ठीक है. क्लियर है. नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन. ये एक्सप्लेन भी करूंगा मैं तुमको. एक्सेप्ट बेंजाइन. बेंजाइन हैव sp2 पाई बॉन्ड. sp2 में पाई बॉन्ड होता है. ये एक ही मॉलिक्यूल होता है. अदरवाइज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन सा आने वाला है? s आने वाला है. और अगर s आता है, अगर s आ रहा है तुम्हारा, s परसेंटेज कैरेक्टर आ रहा है, s तो मिक्स कर रहे हैं हम लोग. अगर s को मिक्स कर रहे हैं तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे मिल रही है. सो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे मिल रही है और पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड? देयर शुड नॉट बी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए. इज इट नहीं? ओके. सो मूव टू द नेक्स्ट कि हम लोग देखते हैं अभी हाइब्रिडेशन की एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे होगी. सो व्हाट आर द डिफरेंट हाइब्रिडेशन विच आर पॉसिबल्स. ठीक है. कौन से डिफरेंट हाइब्रिडेशन पॉसिबल है और कौन सी डी हम लोग यूज करते हैं कौन से हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है. तो पहले तो वो समझाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे. ठीक है. सो व्हाट आर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल एंड द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड. डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस. फर्स्ट यहां पे लिख देता हूं ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है. आगे लिख देता हूं ज्योमेट्री. ठीक है. क्लियर है. कौन सी ज्योमेट्री होते होंगी. फिर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. क्लियर. सो देखो, इफ आई एम राइटिंग sp हाइब्रिडेशन, कौन सा? sp. तो sp मतलब कौन कौन मिक्स हुआ होगा? एक तो s मिक्स करेंगे और एक आइदर px, एक तो px ले सकते हो और py और pz. मतलब px भी मिक्स कर सकते हो, py भी मिक्स कर सकते हो, pz भी मिक्स करते हो, कोई भी मिक्स कर सकते हो तुम लोग. s के साथ ज्योमेट्री क्या बनेगी? कितने बनेंगे? 2 बनेंगे. तो अगर 2 बनते हैं तो 2 कैसे अरेंज होंगे? लीनियर. कैसे बनेंगे? लीनियर. तो अगर तुम लोगों ने x मिक्स करी है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस बनेंगे. अगर y मिक्स कर ली तुम लोगों ने, py मिक्स करी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp अलोंग y एक्सिस. अगर z मिक्स कर ली तो क्या बनेंगे? अलोंग z एक्सिस. कितने बन रहे हैं? 2. सेकेंड, sp2. अब देखो क्या क्या हो सकता है. कोई भी ले सकते हो तुम लोग. s px py. यहां पे मैं बना भी देता हूं. व्हाट आई कैन ड्रॉ हियर? अरेंजमेंट ऑफ HO फॉर्म्ड. कैसे अरेंजमेंट होंगी? तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे तुम्हारे, तो कैसे बनेंगे? लीनियर. ये एक sp
ये एक sp, sp sp, ठीक है, 3 बन रहे हैं, px py कोई भी ले सकते हो, एक तो ps pxy, एक तो py pz, या तो s px pz। अगर ये बना रहे हो 3 हो रहे, 3 कितने बनेंगे, 3 बना रहे हो है ना, जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे, 3 मिक्स कर रहे हो तो 3 बन रहे हैं। क्या ज्योमेट्री बनेगी तुम्हारी, ट्राइगोनल प्लेनर। 3 के साथ क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बराबर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन में बन रहे बेटा, एक प्लेन में बन रहे, तो देखो कैसे बनेंगे एक प्लेन में, ये एक है, ये 2 और ये 3, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। कितने बने तुम्हारे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने एक प्लेन में, ठीक है। दिस फॉर्म इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में बन रहे तुम्हारे। सपोज अगर तुमने x और y मिक्स कर ली, px और py, सो दे आर फॉर्म्ड इन xy प्लेन, बराबर है, क्लियर है बेटा। अगर तुम लोगों ने px और py मिक्स कर ली तो तुम्हारी बच्ची कौन सी है, pz, तो pz क्या हो जाएगी इसको परपेंडिकुलर। अगर तुम लोगों ने py pz मिक्स कर ली तो तुम्हारी px परपेंडिकुलर हो जाएगी इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। सो व्हाट वी कैन राइट, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे आर परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम लोगों ने px मिक्स कर दी है, कौन सी px, तो ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये अलोंग x एक्सिस बनेंगे, तो py और pz का तो कुछ रोल ही नहीं है, तो py क्या होगी, परपेंडिकुलर, pz क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मतलब अगर मैंने px मिक्स कर दी तो मेरे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने कौन से, sp, कितने बनेंगे, 2, तो जो 2 sp बने हैं इनको py और pz क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे sp2 बने, अगर मैंने x और y मिक्स कर ली तो जो pz ऑर्बिटल होगी वो ये तीनों को क्या होगी, परपेंडिकुलर, बिकॉज ये तो प्लेन में बने हैं, इस प्लेन में बने हैं, इस प्लेन में, तो ये pz तुम्हारी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, बराबर है। pz का तो कोई रोल नहीं है, क्लियर है। सो ऐसे हो जाएगा। आगे की बात करते हैं अगर sp3 की, sp3, ठीक है। तो sp3 में क्या क्या आता है देखो, s px py pz, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारों मिक्स करने पड़ेंगे। शेप क्या बनता है बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो कैसे अरेंज होंगी, टेट्राहेड्रल अरेंज होंगी, कितने बनेंगी, 4। यहां पे हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना होगा, इस वाले केस में हियर द एंगल इज 180, हियर द एंगल इज 120, बराबर है। यहां पे क्या होंगी, टेट्राहेड्रली, ठीक है। 4 sp3 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 sp3, क्लियर है। मतलब sp3 के थ्रू ओवरलैप होगा, एंगल कितना होगा तुम्हारा ये 109 डिग्री 28 मिनट, ओके। ये प्लेनर हो सकता है क्या, नहीं, इट इज अ नॉन प्लेनर, एक प्लेन में बन ही नहीं सकते हैं, क्लियर है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा तुमको। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो नोट लिख रहा हूँ बेटा, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, बिकॉज ये मोर देन वन करेक्ट में एज इट इज तुम्हारे नोट आ सकते हैं। अगर मैं पूछूं ये sp3 बनी है तो यहां पे क्या होगा पता है, सपोज यहां पे बोलूं मैं कितना sp3 बना है, तो इन sp3 व्हाट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वल टू 1/4 इंटू 100, दैट इज 25% एस कैरेक्टर, क्लियर है। तो अगर मैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, ये ऑल आर sp3 और ऑल आर sp3, अगर एम्प्टी sp3 है, एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल्स है, अब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी में भी, ठीक है, एम्प्टी sp3 ऑर्बिटल, या फिर जब ओवरलैपिंग होगी, सो ओवरलैपिंग विथ
ओवरलैपिंग विथ सेम एटम, अगर सेम एटम के साथ ओवरलैप हो रहा है, मतलब sp3 ये जो होगा ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, सो ऑल, इफ ऑल आर इक्विवेलेंट, सबकी ओवरलैपिंग सेम, ओवरलैपिंग विथ सेम एटम, ओके, अगर सेम एटम के साथ ओवरलैपिंग है, क्लियर है, तो इन दैट केस each sp3 has a 25% s character and 75% p character, 25% s, 25% s, 25% s, 25% s, तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा 100% और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा 75, 75, 75, 75, 300%, क्लियर है। सो देखो 1:3 का रेशियो आ रहा है तुम्हारा, क्लियर है। तो each s ऑर्बिटल हैज 75% p कैरेक्टर, 25% s कैरेक्टर, क्लियर। अब इसमें बात क्या है, परसेंट s कैरेक्टर एंड परसेंट p कैरेक्टर इन ईच ऑर्बिटल इज सेम, परसेंट h कैरेक्टर एंड परसेंट p कैरेक्टर इन ईच ऑर्बिटल इज सेम, मतलब यहां पे जितना p कैरेक्टर है उतना ही p कैरेक्टर इसमें है, उतना ही p कैरेक्टर इसमें है, उतना ही p कैरेक्टर उसमें है, लेकिन इस ऑर्बिटल में px का कैरेक्टर, py का कैरेक्टर और pz का कैरेक्टर बाकियों से अलग अलग होगा। मतलब मान लो इसमें px py ज्यादा होगा, pz कम होगा, इसमें py pz ज्यादा होगा, px कम होगा, तो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इज सेम इन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो भी तुम लोग बात करते हो जैसे sp, अभी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बिकॉज ये लीनियर है, ये भी प्लेनर है, तो xy जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये नॉन प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर में क्या होगा, परसेंटेज p कैरेक्टर इज सेम। सो हियर आई एम राइटिंग, क्या लिख देता हूं मैं, परसेंटेज p character is same in all 4 orbitals, but percent px, py, pz is different, ठीक है। px, py, pz का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। टोटल द परसेंट p कैरेक्टर, p अगर देखता हूं p टोटल, तो इसमें p टोटल कितना है 75, इसमें भी p टोटल 75, इसमें भी p टोटल 75, इसमें भी p टोटल 75, सो p कैरेक्टर 75, 75, 75, 75 होगा, लेकिन px, py, pz का कैरेक्टर सेम नहीं होगा। समझ में आई बात, क्लियर है, इज इट ओके। px, py, pz सेम नहीं होगा, और ये भी तब इक्वल भी तब होता है जब तुम्हारे एम्प्टी है या फिर ओवरलैपिंग सेम एटम के साथ हो रही है, कोई लोन पेयर नहीं, किसी में कुछ भी नहीं, वो हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग रूल पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग बेंड्स रूल पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें। तो राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे sp3 हो गया 109 28 डिग्री, sp3 हाइब्रिडेशन नॉन प्लेनर, परसेंट p कैरेक्टर इज सेम इन ऑल ऑर्बिटल, यहाँ पे परसेंट p हर जगह पे सेम है, परसेंट px, py भी सेम जगह बिकॉज xy प्लेन में बन रहा है, क्लियर है। यहाँ पे इधर भी सेम होगा px, इधर भी सेम होगा px, परसेंट p भी सेम है, px भी सेम है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, यहां पे देखो क्वेश्चन देखो क्या क्या बना सकता हूं मैं इतने ही पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ px ऑर्बिटल इन sp हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ px ऑर्बिटल इन sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 0%, ऑप्शन 3 33% एंड ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2. What is my correct answer for this? What is the percent px orbital in sp hybridization? तो आंसर शुड बी बोथ 1 and 2. Why? बेटा sp बोला है ना, sp, अब sp में एक s मिक्स करनी है और एक p मिक्स करनी है, तो तुम लोग px या py दोनों मिक्स कर सकते हो। अगर px मिक्स कर रहे हो तो 50% आया, लेकिन अगर तुम लोगों ने py या pz मिक्स करी तो कितना आएगा 0%, तो आइदर 0% और 50%। वैसे अगर मैं sp2 बोलूं, सेम क्वेश्चन, px in sp2, then what is my answer? What is the px percentage? It will be 1 25%, 2 33%, 3 0% and 4 both 2 and 3. तो my answer will be both the 2 and 3. Why? अगर px मिक्स करता हूं, बराबर है, px मिक्स करता हूं तो 1/4, 1/3 that is what 33%,
और अगर मिक्स नहीं करता हो तो 0/3 दैट इज 0%। तो अगर मैं px मिक्स कर रहा हूं तो 33%, अगर नहीं मिक्स कर रहा हूं तो व्हाट 0। और अगर px इन sp3 बोलूं तो फॉर श्योर 25%। ओवरऑल हाइब्रिडेशन sp3 में px का कितना होगा 25%, बिकॉज मैं p मिक्स ही करना पड़ेगा। sp3 में मेरे पास चॉइस है क्या कोई? नहीं, 3 p है, तीनों p मिक्स कर रहे हैं हम लोग, सो वी डोंट हैव एनी चॉइस फॉर p ऑर्बिटल। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाइब्रिडेशन। अब देखो Ep इक्वल टू 4 के लिए बेटा sp3 है हमारे सिलेबस में फॉर नाउ, लेकिन इसके लिए और भी पॉसिबल होते हैं, और कौन से पॉसिबल होते हैं हम लोग देख लेते हैं। अभी देखने में क्या जा रहा है, हम लोग पढ़ तो सकते हैं, ठीक है, जो भी है मैं तुमको बता देता हूं कि कौन से डी इन्वॉल्व होते हैं, कौन से पी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग कोई भी पी मिक्स कर सकते हो। ओके, नाउ विल ऑन टू द नेक्स्ट वाले कौन से है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। So the next hybridization that will be DQ base or DsP2. ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट हाइब्रिडेशन होता है जो अभी आएगा नहीं हमको, बट जस्ट हम लोग ले लेते हैं कौन सा DQ बेस, कौन सा DQ बेस। सो DQ बेस हाइब्रिडेशन होता है जो अभी नहीं आएगा हमको। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व बेटा यहाँ पे होता है। अब जैसे मैं DQ बेस ले रहा हूँ तो ये अभी हमको केमिकल बॉन्डिंग में यूज नहीं आएगा, बट दैट विल स्टडी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एक तो एस आने वाली है, तो जो एस होती है वो NS होती है, कौन सी NS मतलब आउटर, जैसे 4s यूज हो जाएगी 4s, और जो D यूज होती है वो D कौन सी होती है N-1, कौन सी होती है N-1। तो यहाँ पे N-1D, लेकिन कौन से D आएंगे देखो, N-1D XY YZ एंड D XZ। तो ये प्लेनर तो बिल्कुल नहीं होगा, XY YZ XZ, और इनके साथ यूज होती है S, और कौन सी S NS, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, ये भी 4 बन रहे हैं, प्लेनर नहीं है, तो कौन सी बनेगी टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ HO फॉर्म 4, ये भी टेट्राहेड्रल बनते हैं, और अभी केमिकल बॉन्डिंग में इसका काम नहीं है हमको, ठीक है, दैट इज DQ बेस, क्लियर। फिर नेक्स्ट आती है DsP2, इसका भी काम नहीं पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में। DsP2, अब देखो DsP2 S की अगर अब मैं स्टैंडर्डाइजेशन सेट करता हूं बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मैं हमेशा जनरली अगर एक लेनी होंगी मुझे, स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर मुझे एक ही P लेनी होगी तो मैं कौन सा यूज करूंगा PX, अगर 2 P लेनी होंगे तो XY। तो देखो DsP2 अब S हो गई, PX हो गई, PY हो गई, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है क्या? नहीं, लेकिन अभी हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लिया कि अगर मुझे P यूज करनी है तो मैं कौन सी करूंगा PX PY। तो अब अगर मुझे D चूज करना है, टेल मी विच D वी हैव टू यूज, यहाँ पे मगअप नहीं करना है बेटा। देखो S PX PY, तो अगर मैं XY प्लेन लेता हूं तो PX भी उसी प्लेन में आ रही है, PY भी उसी प्लेन में आ रही है, और S तो आनी है, हर जगह पे आनी है। अब मुझे बताओ फॉर बेटर ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग होने के लिए मैं D की कौन सी ऑर्बिटल यूज करूं सो दैट मेरी ओवरलैपिंग अच्छी होंगी। ये तीनों ऑर्बिटल कौन से प्लेन में आ रही है XY प्लेन में आ रही है, तो मैं कौन सी D यूज करूंगा जो XY प्लेन में होगी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन है, एक तो dx² - y² या तो dxy, लेकिन ये अलोंग एक्सिस होते हैं, तो अच्छी ओवरलैपिंग के लिए मैं कौन सी वाली चूज करूंगा एक्सियल ऑर्बिटल, कौन सी वाली एक्सियल। तो कौन सी वाली चूज करूंगा मैं dx² - y², dx² - y²। सिंस आई एम राइटिंग DsP2, तो बेटा ये D पहले आ रहा है ना, तो D मतलब अंदर का होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो इट विल बी N-1D x² - y², और इसके साथ होता है S PX PY। यहाँ पे मगअप नहीं करना है, क्यों आ रहा है
बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इन द एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में बन रहे हैं? एक्स वाई। ये स्टैंडर्डाइजेशन सेट है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन सेट करते हैं वैसे ये स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर लिया मैंने। DSP2 में हमेशा अगर एक लेनी है तो मैं PX लूंगा, अब आगे के इसमें दो लेनी है तो X और Y लूंगा, क्लियर है। तीसरा है तो Z लेना ही पड़ेगा, तो मैंने S के साथ PX PY ले लिया। अब मुझे D की ऑप्शन है तो D चूज करना है। D कौन सी लेंगे? जो XY प्लेन में आएगी, फॉर बेटर ओवरलैपिंग। तो देखो चार जो आ रहे हैं वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो एक ही प्लेन में, तो ये कौन सा शेप बनेगा इससे? देखो EP=4 में मैंने तुमको बताया था, EP=4 में एक टेट्राहेड्रल था और एक क्या था? स्क्वायर प्लेनर। तो जो स्क्वायर प्लेनर आता है वो DSP2 से आता है। क्या आता है? DSP2 से, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ये भी कितने होंगे? 4। और ये कैसे अरेंज होते हैं? ये होते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दे आर लाइक 90 डिग्री एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट्स 90 डिग्री। ठीक है, तो EP=4 में ये जो पॉसिबिलिटीज आ गए। फिर EP=5 की जब बात करते हो, EP=5 तो उसमें कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? अब 5 आ रहे हैं मतलब sp3d लेना पड़ेगा। sp3d, ठीक है। d जो लिया है वो बाहर का लिया है, ठीक है, मतलब ns npx py में एक साथ लिख देता हूं, npx प्लस py प्लस pz। अब मुझे बताओ कोई भी दो p प्लेन में आ सकती है। हमारी ज्योमेट्री क्या बनती है बताओ? कौन सी ज्योमेट्री बनती है इससे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री बनती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मीनिंग क्या होगा? अंडरस्टैंड केयरफुली। कितनी बननी है? 5। कितनी बननी है? 5। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसी बनती है? चलो पहले मैं शेप बनाता हूं, फिर तुमको वहां पे बताऊंगा कि डी कौन सी यूज होगी। तो देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ऐसे होता है, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ऐसी बनेगी तुम्हारी। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। ठीक है, तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तुम्हारे। अब देखो ये 3 एक प्लेन में आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, सबके सब sp3d। यहां पे ये भी sp3 है, सॉरी dq-base है, ये भी dq-base, 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 ये dsp2, 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 सब में इक्वल परसेंटेज अभी तक, बिकॉज सब में एंगल सेम था, लेकिन यहां पे एंगल बदल गया, तो यहाँ पे परसेंटेज बदलता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट राइट नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, मैं इसको लिख देता हूं sp3d, इसको भी लिख देता हूं sp3d, इसको भी लिख देता हूं sp3d, sp3d और sp3d। कितने बने? 5 sp3d बने। कितने sp3d बने? 5। अरेंज हो गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब मुझे बताओ, अगर ये बेसिकली इसमें ना स्प्लिटिंग होती है, तो 3 एक प्लेन में है, तो देखो S तो कोई भी प्लेन में जा सकती है। मैंने कौन सा प्लेन चूज किया? XY, तो PX और PY प्लेन में चले गए, मतलब जो 3 ऑर्बिटल है S PX PY वो प्लेन में चले गए। कौन से? S PX PY। उन्होंने sp2 बनाया होगा, उन्होंने क्या बनाया होगा? sp2, और वो प्लेन में चले गए। अब ये कौन सी? ये sp2 अगर ऐसे बन गई तो ये कौन सी होगी तुम्हारी? PZ। ये कौन सी होगी? PZ। अब इसके साथ ये ओवरलैप कर रही है, तो ये यहां पे किसका कैरेक्टर ज्यादा आएगा? d ऑर्बिटल का। तो PZ के साथ ओवरलैप करने के लिए, बिकॉज प्लेन में तो कौन चले गए? S PX PY, तो PZ के साथ मैक्सिमम ओवरलैप करने के लिए मैं d की कौन सी यूज करूं? सो दैट ओवरलैपिंग विल बी मैक्सिमम। d की कौन सी यूज करूंगा मैं? बिकॉज ये PZ है, PZ अलोंग एक्सिस आती है, तो d की कौन सी यूज करूंगा? dz²। कौन सी यूज करूंगा? dz²। तो यहां पे लिख देता हूं मैं dz², मतलब ये तुम्हारी ऐसे ग्रुप टाइप बन रहा है। एक बन रहा है PZ dz² का, और एक बन रहा है S PX PY का। तो बेसिकली ये sp2 प्लस pd जैसी केस हो रही है। देखो 3 बन रहे तो ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 बन रहे तो लीनियर। अब ये pd हाइब्रिडेशन वगैरह भी होता है, लेकिन हमको सिलेबस में नहीं है। pd मतलब क्या? कितने बनेंगे? 2 मतलब लीनियर। देखो 2 मतलब लीनियर दिख रहे हैं मुझे एक लाइन में। तो बेसिकली इट इज स्प्लिट इनटू दिस 2 पार्ट, दिस इज spxy, दिस इज pz dz², बराबर है। इस pd में pz
डी जेड स्क्वायर होता है, पीडी में क्या होता है, पीजेड डी जेड स्क्वायर। सो दिस sp3d is splitted to sp2 plus pd। ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में जब बेंड्स रूल पढ़ेंगे, बट नाउ आई एम ट्रीटिंग दिस एज ऑल आर sp3d ऑर्बिटल्स। क्लियर है, सबके सब sp3d ही है, बाद में हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में, ठीक है। ओके, सो यहां पे जो डी आई है, कौन सी आई है, डी जेड स्क्वायर। ओके, अभी sp3d में यही सब बातें हैं, हमको काम पड़ेगा sp3d का। और एक होता है बता dsp3, ये भी सेम है, खाली यहाँ पे जो d यूज होती है वो अंदर वाली होती है, मतलब n-1 d z स्क्वायर प्लस n pz, ये एक हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप, और एक हो जाएगा s npx npy, ठीक है, npx npy। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो है ऐसे dsp3 dsp2 dqbase, ये तुमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी आर जस्ट सीइंग द पार्ट ऑफ बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं मेरे एग्जाम में डाल सकता हूँ, किसी भी एग्जाम में मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आगे भी तुमको हेल्प होगी। इसके लिए वजह से भी जो बाकी सब चीजें सेम आएगी, खाली अंदर की डी यूज हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो सकता है, 3s 3p 3d, यहाँ पे यूज होगा 4s 4p और 3d, बिकॉज 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम, तो यू कैन मिक्स 3d विद द 4s, वो मिक्स हो सकती है तुम्हारी। दिस ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ये भी सेम बनेगी, ठीक है, एज इट इज। क्लियर। और एक यहां पे लिख देता हूं मैं, हाइब्रिडेशन sp3d ओनली। बट अब देखो, अगर मैं तुमको बताऊं ट्रायंगल बाइपिरामिडल तो हमको है, उसके अलावा और एक मैंने तुमको ज्योमेट्री बताई थी, कौन सी ज्योमेट्री बताई थी, बताओ, याद करो, स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। मैंने बोला था ये भी हमको नहीं आती है बॉन्डिंग में ज्यादा, एक आध दो प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं इसके। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल मतलब 4 एक प्लेन में बनेंगे, चार एक प्लेन में बने, और एक जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, 5 बने ना, हर कोई कौन है, sp3d 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 sp3d, 5 बने। क्लियर है। अब मुझे बताओ, यहां पे जब तुम लोग मिक्स करोगे तो ये प्लेन में जा रहा है, देखो कोई भी 2p प्लेन में जा सकते हैं, तो प्लेन में गई होगी s, एक तो s गई, प्लेन में कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4, तो प्लेन में कौन कौन गया होगा, s px py, और ये वर्टिकल होंगी, ये pz होंगी। तो अब मेरे को जो d डालनी है, वो d कहां पे जा रही है, तुम्हारी प्लेन में जा रही है। कौन से प्लेन में जा रही है, xy प्लेन में। तो अब मैं d कौन सी यूज करूंगा, चलो फास्ट बताओ, d कौन सी यूज करूंगा मैं, कौन सी d यूज करूंगा, प्लेन में जाने वाली चाहिए। कौन से प्लेन में, xy प्लेन में। कौन से प्लेन में, xy प्लेन में। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन से, एक तो dx² - y² और dxy, लेकिन मैं कौन सी यूज करूंगा, एक्सियल वाली, बिकॉज एक्सियल पे लूंगा तो ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं कौन सी d यूज करूंगा यहाँ पे, आई विल यूज ns npx npy एंड dx² - y²। क्लियर है। और तुम्हारी जो बच जाती है वो कौन सी होती है, npz। क्लियर। अगर sp3d है तो तुम लोग कौन सी d यूज कर रहे हो यहाँ पे, अगर sp3d ही है लेकिन अगर शेप स्क्वायर पिरामिडल है तो मेरी d कौन सी आती है, dx² - y²। और अगर मेरा sp3d है और ट्रायंगल बाइपिरामिडल है तो कौन सी d आती है, dz²। कौन सी d आती है, dz², बिकॉज ऐसे जा रहा है 3 एक प्लेन में, तो ये pz के साथ ओवरलैप हो रहा है, ये xy के साथ ज्यादा ओवरलैप हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल चूज dx² - y²। ओके, इसका काम हमको नहीं पड़ेगा, हमारे लिए इन इतने जितने लिखे उनमें से सिर्फ ये आने वाला है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात, ये आने वाला है, बाकी इनका काम हमको नहीं पड़ता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बहुत होते बेटा, बाद में मैं जब हमारा फिजिकल क्लास चालू होगा, मतलब हम लोग 1 to 1 पढ़ेंगे, तब मैं तुमको और मतलब बता दूंगा ऐसे एज ए क्यूरियोसिटी। जैसे हम लोग तो अभी EP = 7 तक ही पढ़ेंगे, EP = 8, EP = 9 के लिए भी बातें चलती है, ठीक है, 8 के लिए भी चलती है, उसमें भी हाइब्रिडेशन बदलता है, तो बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, कभी आता नहीं है एग्जाम में, वो एज अ पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी की बात होती है। ठीक है, तो और लोग भी देख लेंगे, जैसे अभी तो हम लोग हमारे सिलेबस को स्टिक टू रहते हैं, कितना है थोड़ा बहुत उससे हायर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें तुमको काम पड़ेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ओके, आगे का कौन सा हो गया, EP5 हो गया हमारा, तो अब आएंगे EP6 के ऊपर।
EP6 में EP6 मतलब कितने मिक्स करने पड़ेंगे, 6 बननी चाहिए, मतलब 6 मिक्स करनी पड़ेगी। तो sp3d2 sp3d2 एक s मिक्स करेंगे, 3 p मिक्स करेंगे और 2 d2 मिक्स करेंगे, बराबर है। एक s क्या क्या करेंगे हम लोग बताओ, sp3d2 तो देखो ns npx npy, ठीक है। चलो पहले तो मैं इधर का लिख देता हूं, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी तुमको। कितने बनेंगी, 6। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाय पिरामिडल। कैसे बनेंगे, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बनने चाहिए। ये बने एक प्लेन में, ये ऊपर ये नीचे, 6 बने। अब देखो ये जो है ये प्लेन में जा रहे हैं, तो प्लेन में कौन कौन जा रहा होगा, s px py, और उसी प्लेन में लेना है तो d की एक प्लेन में जाएगी, बिकॉज तीनों के तीनों p एक प्लेन में नहीं आ सकते हैं, तो ये वर्टिकल वाली होंगी pz, तो ये कौन लेनी पड़ेगी, dz स्क्वायर। और एक d कहां पे जा रही है, प्लेन में, तो कौन सी लेंगे, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो एक तो ये ग्रुप बन रहा है तुम्हारा n dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का, और दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है, n pz प्लस dz स्क्वायर का, ठीक है। ये बन रहा है तुम्हारा dsp2 और ये बन रहा है तुम्हारा pd। dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर और pd मतलब एक्सियल, और वो मिल के बन जाता है ऑक्टाहेड्रल। समझ में आई बात, क्लियर है, इज दिस थिंग ओके बेटा, क्लियर। फिर आगे की बात करते हैं, sp3d2 एग्जैक्टली sp3d2 जैसे हाइब्रिडेशन तुमको मिलेगा बाद में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वहां पे पढ़ते हो तुम लोग d2 sp3 भी पढ़ते हो, तो वहां पे कुछ नहीं, अंदर के डी यूज होते हैं, n-1d, ठीक है, n-1d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ns प्लस npx प्लस npy, n-1d z स्क्वायर प्लस npz। तो जो d यूज हो रहे हो कौन से हो रहे हैं, अंदर वाले, बाकी सेम चीजें होगी, सेम, ओके, क्लियर है। फिर बात आती है sp3d3 की, sp3d3। अब sp3d3 में क्या पॉसिबिलिटी आएगी, देखो sp3d3 में सबसे पहले तो शेप लिख देता हूं। व्हाट इज द शेप, शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। यहां पे बनेंगे कितने, 7। कैसे बनेंगे देखो, ये 5 बने तुम्हारे पेंटागन, और ये 2, तो ये देखो पेंटागन जो बन रहा है, ये पेंटागन हो गया और ये एक्सिस होगी। समझ में आया कि नहीं बात, जो पेंटागन बन रहा है, तो देखो प्लेन में कौन कौन जा रहा होगा, एक s, एक px और एक py, तो ये वर्टिकल कौन होगी, pz। तो नीचे जो d यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, फिर से dz स्क्वायर इसके साथ। और अब 2d जो है वो प्लेन में जा रहे हैं, कौन सा प्लेन है, xy, तो एक तो ले लेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अभी ऑप्शन नहीं है तो किसको मिक्स करना पड़ेगा, dxy को। सो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द ऑर्बिटल दैट वी आर गोइंग टू यूज, देख लो कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे हम लोग, ns npx npy प्लस n dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर n dxy, इनको मिक्स करेंगे। और दूसरा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, n pz प्लस n dz स्क्वायर। समझ में आया। सो बेटा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से हाइब्रिडेशन में कौन सी डी यूज हो रही है, कौन से हाइब्रिडेशन में कौन सी डी यूज हो रही है, ये क्वेश्चन आता है डी ऑर्बिटल। समझ में आया, मगअप वाली बात नहीं है, वी हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली कि कौन से इसमें कैसे होनी चाहिए, किस हिसाब से, उसके शेप से डिटरमाइन होता है कि कौन सी डी यूज करनी चाहिए, कौन सी डी यूज नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भी होता है, लेकिन अभी हम लोग जरूरत नहीं है, हम लोग दैट विल स्टडी लेटर, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे आईआईटी में, आईआईटी से ओलंपियाड में भी नहीं आता है, ठीक है, और एज अ क्यूरियोसिटी करके हम लोग देख लेते हैं। तुम लोग जब आओगे तब मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दिस इज अप टू द 7th ओनली, here we are done because we have to see EP equal to 2, EP equal to 3, EP equal to 4, EP equal to 5, EP equal to 6, EP equal to 7, okay।
सो ये हो गए बेटा हमारे शेप्स और ये हो गए तुम्हारे ऑर्बिटल्स। तो इसमें से कौन से हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हैं जिनमें एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट ऑर्बिटल के बीच में एंगल सेम होता है? sp, sp2, sp3, sp3d2। तो ये जो है जिनमें एडजेसेंट ऑर्बिटल के बीच में एंगल सेम होता है, दोज आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दैट ऑल राइट। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। सो क्या बोला मैंने? The orbitals the hybridization in which angle between adjacent hybrid orbitals is same called as equivalent hybrid orbitals, equivalent hybrid orbitals, and others are called as non-equivalent hybrid orbitals। ठीक है, यहां पे एक्सप्लेन होगा तुम्हारा ट्रायंगल बाइपिरामिड का जो लिखा था ना मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ का, वो यहां पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो sp, sp2, sp3, sp3d2 they are your equivalent hybrid orbitals, और sp3d और sp3d3 they are non equivalent hybrid orbitals। इसलिए इनमें there are two types of position, equivalent, equatorial and axial। इनमें नो एक्सियल, नो इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहां पे सो इन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ of hybrid orbital length of all orbitals is same। मतलब sp3 के 4 है उनकी ऑर्बिटल लेंथ सेम, sp2 के 3 है उनकी ऑर्बिटल लेंथ सेम, sp के 2 है उनकी ऑर्बिटल लेंथ सेम, sp3d2 के 6 है उनकी लेंथ सेम। बट हियर इक्वेटोरियल, यहां पे मैं लिख के रख देता हूं, ठीक है। sp3d2 में, sp3d और sp3d3 में बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। sp3d में इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज स्मॉलर देन एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, ठीक है। और sp3d3 में इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। दैट वी विल सी, ये हम लोग प्रूव करेंगे। राइट नाउ एक जगह पे लिखा है इसलिए मैंने ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो बाकी यहां पे अगर तुम लोग बात करते हो sp, sp2, sp3, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स इन पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन, यहां पे ऐसे लिख दो इन पर्टिकुलर इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। मतलब ऑल sp, जितने भी sp रहेंगे उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ सेम, जितने भी sp2 होंगे उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ सेम, जितने भी sp3 होंगे उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ सेम, जितने भी sp3d2 होंगे उनकी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ, ऑर्बिटल लेंथ बोल रहा हूं, वेरी प्रिसाइज ऑर्बिटल लेंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हमको बाद में पढ़ना है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ। इज इट ओके? दिस sp इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायगोनल ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइजेशन is also called as diagonal geometry। लीनियर होता है ना, तो डायगोनल ज्योमेट्री और डायगोनल ज्योमेट्री, डायगोनल हाइब्रिडेशन, ठीक है। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने देखा बेटा हाइब्रिडेशन कितने तरीके होते हैं, क्या क्या होते हैं, किसमें क्या डी इन्वॉल्व होती है। अभी हम लोगों को इसका इन्वॉल्व करके इनका एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं इन सब हाइब्रिडेशन से। ओके, सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। यू जस्ट कीप स्टडीइंग द थिंग्स प्रॉपरली, नोट डाउन एवरीथिंग, है ना।
जो भी नोट्स है प्रॉपरली नीट एंड क्लीन बनाओ. ओके, डन फॉर द डे. थैंक यू.